Anna Hazare and former Chief of Army Staff General VK Singh are addressing this press conference in Mumbai. Let's just listen in. This is Anna Hazare's first press conference in a long time, and the man you see sitting next to Anna Hazare is none other than former Chief of Army Staff General VK Singh. Big announcements to be made to chart out the future course of the anti-corruption movement as far as Team Anna is concerned, as separate from Team Kejriwal. Anna Hazare and General Vijay Kumar Singh, Chief of Army Staff, who remember had, or at least was seen to have taken on the government as far as corruption issues was concerned, is sitting right there next to Anna Hazare. Has General VK Singh taken the place of Arvind Kejriwal in Team Anna? We're going to know all about that in the press conference that's on your screens. This is live from Mumbai. Let's listen in. And the other one, please. Remember, shortly after retiring, General VK Singh had made indications that he was open to linking up with anti-corruption activists. He held meetings with Baba Ramdev. He held rallies earlier where he made his presence felt at an Anna Hazare event at Jantar Mantar in Delhi. And now you see the most explicit coming together of two persons perceived in the public imagination as anti-corruption behemoths. One of them, Anna Hazare, the man responsible for the entire anti-corruption movement in the country, which has spawned, of course, a political movement, Team Kejriwal, which he has nothing to do with, or at least he says so. The other, a man who had a long and unseemly battle with the government of India over his age, former Chief of Army Staff, General Vijay Kumar Singh, the man in blue sitting right next to Anna Hazare. There you have it. That's General VK Singh on your screens right now. He's a retired Chief of Army Staff, and he is now explicitly there, right next to Anna Hazare, making no mistake, putting aside all arguments about where he stands on the anti-corruption issue. General VK Singh is now part of Team Anna. He has waged this war against the Army High Command for truth and justice. He has taken that forward now. He has had certain confabulations, and he is here to tell us how the anti-corruption movement is going to go forward. To quickly get down to the main activity for the evening, which is the media interaction, how we are going to do it is General VK Singh Saab is going to read a small statement, explain the statement, after which Anna Hazare ji is going to support and discuss that statement further, after which we will open the house for question and answers. Thanks so much. Could I request General Saab to read and discuss the statement he has brought with him? थैंक यू, धन्यवाद। हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में जो देश के अंदर लोगों से बातचीत की, जनता को देखा, उसके हिसाब से और आज के हालात के हिसाब से कुछ चीजें जो जरूरी हैं उनके बारे में एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, जो कि हमने संयुक्त रूप से लिखी है। पहले ये हिंदी में है, और अगर आप जरूरत समझते हैं, आवश्यकता समझते हैं, तो इंग्लिश के अंदर भी इसके बाद इसको बोला जा सकता है। हमारा मानना है कि जो सरकारें हैं वो संविधान विरोधी हैं। सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है। संविधान के मुताबिक भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसका साफ मतलब है कि भारत का प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार
आम आदमी के जीवन की रक्षा और उसकी बेहतरी के लिए वचनबद्ध है। लेकिन सरकार ने इस लोक कल्याणकारी चरित्र को ही बदल दिया है। सरकार बाजार के सामने समर्पण कर चुकी है, लेकिन संसद में किसी ने इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया। अगर भारत को लोक कल्याणकारी तरीके से चलाना है या उसकी जगह नव उदारवादी बनाना है, तो इसका फैसला कैसे होना चाहिए? क्या यह फैसला सिर्फ सरकार या कुछ राजनीतिक दल कर सकते हैं, या कोई और? हमारा मानना है कि इसका फैसला देश की जनता करेगी। यह देश की जनता का अधिकार है कि वह किस तरह की सरकार से शासित होना चाहती है। इसलिए हमारी मांग है कि इस संसद को भंग किया जाए, ताकि जनता फैसला कर सके कि हमारी सरकार का चरित्र कैसा हो और वह संविधान के द्वारा स्थापित लोक कल्याणकारी हो या नव उदारवादी हो। सरकार ने संविधान के प्रियम्बल की आत्मा और उसकी भावनाओं को दरकिनार कर दिया है। संविधान के भाग 4, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा हो रही है। सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर चुप हैं। संविधान की भावनाओं को दरकिनार करने का हक सरकार को किसने दिया है? दरअसल गरीब और आम लोगों के हितों की बजाय निजी कंपनियों के हितों के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। संसद में इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर चुप है। संविधान की भावनाओं को दरकिनार करने का हक सरकार को किसने दिया है? दरअसल गरीब और आम लोगों के हितों की बजाय निजी कंपनियों के हितों के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। संसद में इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि संसद को फौरन भंग किया जाए। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सारे राजनीतिक दल अपना पक्ष जनता के सामने रखें और बताएं कि वो बाजारवाद के मूल्यों पर सरकार चलाना चाहते हैं या फिर संविधान की आत्मा और भावनाओं को लागू करना चाहते हैं। इस संसद ने देश के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का हक इसलिए भी खत्म कर दिया है क्योंकि देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन और खनिज के मुद्दे पर देश के गरीब का भरोसा खत्म हो गया है। सरकार नदियों और जल स्रोतों का निजीकरण कर रही है। खदानों के नाम पर जंगलों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है और आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों की उपजाऊ जमीन अधिकरण करके सरकार निजी कंपनियों के साथ मिल बांटकर बंदरबांट कर रही है। इस जमीन पर देश के लोगों का हक है, वो निजी कंपनियों को बांटी जा रही है। सरकार की इन नीतियों से आम जनता परेशान है और सांसदों ने जंगल, जमीन, जल और खनिज के मुद्दे को संसद में उठाना भी बंद कर दिया है। इसलिए इसका फैसला होना जरूरी है कि देश के जल, जंगल, जमीन और खनिज पर किसका हक है। इस बात का फैसला करने का हक भी देश की जनता को है। इसलिए अगले चुनाव में यह तय होगा कि देश की जनता किन नीतियों के पक्ष में है। इसलिए भी इस संसद का भंग होना अनिवार्य है। संविधान के तहत सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि जितने भी वांछित हों, जैसे कि दलित, आदिवासी, घुमंतु,
मछुआरे, पिछड़े एवं मुसलमान, उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए नीतियां बनाई जाए। लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी है। किसी के मुंह का निवाला तो किसी के हाथ से काम को छीनने का काम सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से देश के हर वर्ग के लोगों का विश्वास इस संसद से उठ गया है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि संसद को भंग कर फौरन चुनाव की प्रक्रिया चालू की जाए, ताकि नई सरकार लोगों की आशाओं के अनुरूप काम कर सके। एक तरफ देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और दूसरी तरफ देश में मूलभूत सेवाओं को बहाल करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। विदेशी पूंजी के लिए देश के सारे दरवाजे खोलने को सरकार एकमात्र विकल्प बता रही है, जबकि विदेशी बैंकों में काला धन जमा है। अगर ये काला धन वापस आता है तो देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। दुनिया भर के देश अपने देश का काला धन वापस लाकर अपनी स्थिति सुधारने में लगे हैं, लेकिन हमारी संसद काला धन को वापस लाने के मुद्दे पर खामोश है। देश के लोगों को यह भी नहीं पता कि किन किन लोगों का कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। इसलिए इस संसद का भंग किया जाना चाहिए, ताकि अगली सरकार इस काले धन को वापस ला सके। इस संसद को इसलिए भी भंग किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने हाल में जितने फैसले लिए हैं उस पर यूपीए अल्पमत में है। खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का फैसला माननीय प्रधानमंत्री कैसे ले सकते हैं, जबकि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अल्पमत में है। सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा दिए, जिसकी वजह से महंगाई पर जबरदस्त असर पड़ा है। देश के कई शहरों में टेम्पो और ऑटो रिक्शा चालक आंदोलन कर रहे हैं। किराया बढ़ गया है, हर एक चीज महंगी हो गई है। यूपीए गठबंधन में शामिल पार्टियां भी उनका साथ छोड़कर अलग अलग चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी लगता है बिल्कुल अकेली पड़ गई है। देश की जनता पर मुश्किल फैसले थोपना क्या प्रजातंत्र है? एलपीजी यानी कुकिंग गैस की कीमत मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई है और दलील यह दी गई है कि पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रजातंत्र में कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेवारी के मंत्र को बड़ी आसानी से भुला दिया है। पहले सरकार फैसला नहीं ले रही थी और अब जब फैसले लेने लगी है तब आम जनता की मुसीबतें बढ़ाने का फैसला ले रही है। इसलिए हमारी मांग है कि संसद को भंग कर फौरन चुनाव हो, ताकि राजनीतिक पार्टियां इन मुद्दों पर अपनी राय जनता के सामने रखें। इस बात का फैसला हो सके कि क्या हम संविधान के मुताबिक देश में नीतियां बनाना चाहते हैं या फिर बाजार के मुताबिक नीतियों के पक्ष में है। आज जनता सोचती है कि संसद में बैठे लोग देश का उज्जवल भविष्य नहीं है। अगर देश को उज्जवल भविष्य देना चाहे तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो या महात्मा गांधी जी के संकल्प का ग्राम विकास हो, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि देश बदलने के लिए पहले गांव बदलना पड़ेगा। जब तक गांव नहीं बदलेंगे तब तक देश कैसे बदलेगा। गांव बदलने के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि मानवता और प्रकृति दोनों का दोहन नहीं होना चाहिए। विकास की दो शर्तें गांधी जी ने रखी थी कि ना तो मानवता का दोहन हो, न प्रकृति का दोहन हो। आज हम देख रहे हैं कि सब मिलकर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला, जंगल काट रहे हैं, विदेश के लोगों को बुला रहे हैं, किसानों की जमीन जबरदस्ती छीन रहे हैं और उस पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जिससे गरीब आदमी को फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसकी वजह से हवा प्रदूषित हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है और समाप्त हो रहा है। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा और कभी न कभी विनाश होगा।
ऐसा विकास सही विकास नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी जी कहते थे। देश में कई जगह ग्राम स्वराज के अच्छे प्रयोग हुए हैं, जहां पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, कोयला नहीं, सिर्फ प्रकृति का उपयोग किया गया है और लोग स्वावलंबी हो गए हैं। बारिश की एक एक बूंद को सिंचित किया गया है, पानी का संचयन किया गया है, रिचार्ज किया ग्राउंड वाटर से, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा है, गांव की मिट्टी गांव में रखी गई है, जिससे कृषि का विकास हुआ है। हाथ के लिए काम, पेट के लिए रोटी गांव में ही मिल गई है, जिसकी वजह से शहर की तरफ जाने वाले लोगों की रोकथाम हो गई है। अब देश की जनता के लिए सोचने का समय आ गया है। अगर जनता आज नहीं सोचेगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां खतरे में पड़ जाएंगी। तब तक ये लोग कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे, या कुछ रखेंगे इसमें संदेह है। दिल्ली की संसद सफल नहीं रही है, सब मिलकर देश को लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने जितना हमको नहीं लूटा, उससे ज्यादा ये लोग लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने 200 साल में जितना भारत को नहीं लूटा, 65 सालों में इन्होंने देश को उनसे ज्यादा लूट लिया है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि संसद में बैठे लोग, सत्ता में बैठी सरकार देश का अच्छा भविष्य नहीं है। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र बना था। उसी दिन देश में प्रजा की सत्ता आई थी। प्रजा इस देश की मालिक हो गई थी। सरकार की तिजोरी में जमा होने वाला पैसा जनता का है। पूरी जनता इस पैसे का कहीं नियोजन नहीं कर सकती थी। इसलिए संविधान के मुताबिक हमने प्रतिनिधिक लोकशाही स्वीकार की। मालिक ने अपने प्रतिनिधि सेवक के नाते भेजे। राष्ट्रपति ने जिन अधिकारियों का चयन किया, वे सरकारी सेवक हैं, यानी जनता के सेवक हैं। अब जनता ने सेवक को भेजा है और सेवक अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसे निकालने का अधिकार जनता का है, क्योंकि जनता मालिक है। मालिक ने जिन सेवकों को भेजा था, वे देश और समाज की भलाई का सही काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको निकालने का समय आ गया है। इसलिए जनता की भलाई के लिए इस देश की संसद को भंग होना चाहिए। ये जनता के हाथ में है। अगर पूरे देश में जनता रास्ते पर उतर जाए तो संसद भंग होगी। इसकी जगह नई संसद बनानी है, जिसके लिए जनता नए प्रतिनिधि चुनेगी, ऐसे प्रतिनिधि जो चरित्रवान हो। हम लोग चरित्रवान प्रतिनिधियों के चुनने में मदद करने के लिए सारे देश में घूमेंगे। नए चुने जाने वाले प्रतिनिधि को चरित्रशील, सेवाभावी, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, यानी कि उनकी छवि ठीक हो, सेवाभावी हो, सक्षम हो, और उन्हें एक ऐसा एफिडेविट देना चाहिए जिसका अगर वो पालन ना करें तो जनता उनको वापस बुला सके। उस प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार जनता रखेगी। इससे देश का भविष्य बदलने की शुरुआत होगी। आज तो प्रतिनिधि के वापस बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी प्रतिनिधि को कोई डर नहीं रहता। वो कहता है कि 5 साल के लिए मुझे चुन लिया गया है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। 5 साल के लिए तो हम राजा बन गए। आज की पार्लियामेंट को भंग कर नई पार्लियामेंट जनता को बनानी है, और नई पार्लियामेंट बनाने के लिए जनता की शर्तें होंगी। ये जनता का हक है, ये जनता का अधिकार है। जनता की संसद बनेगी, तब उसमें जन लोकपाल आएगा, ग्राम विकास आएगा, राइट टू रिजेक्ट आएगा, ग्राम सभा को पावर आएगा। साथ ही अंग्रेजों के बनाए गए सारे सड़े गले कानूनों को बदला जाएगा। सभी को शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य, सभी को रोजगार और सभी के लिए विकास की योजना बनेगी। देश को स्वावलंबी बनाएंगे। देश में जनतंत्र है, जनतंत्र के मुताबिक कानून होने चाहिए। संविधान में सामाजिक विषमता दूर करने की बात कही गई है, आर्थिक विषमता दूर करने की बात कही गई है, जात पात के भेद समाप्त करने की बात कही गई है। संविधान में ये सब होते हुए भी संसद में बैठे लोग इलेक्शन के लिए जात पात का और धर्म का विष फैला रहे हैं, जात पात में लोगों को बांट रहे हैं। संविधान का पालन संसद में बैठे लोग कहां कर रहे हैं?
इसलिए जनता को आज की पार्लियामेंट बर्खास्त करने की और नई पार्लियामेंट चुनकर अपने लिए नए भविष्य का निर्माण करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए हमारी मांग है कि ये संसद भंग होनी चाहिए, जनता को अधिकार मिलना चाहिए कि वो नए प्रतिनिधि और नई संसद चुने। धन्यवाद। Want me to read it in English? अन्ना सिंह अपना बोलो। काफी स्पष्ट हो रहा है। अब हो गया थोड़ा 2 शब्द कहिए। जनरल वीके सिंह साहब ने जो बात रखी है, जो नोट भी निकाले, हम मिलकर निकाले, इसलिए मैं अलग से कुछ कहना ठीक नहीं। लेकिन एक बात, मैं इस बात को पूरा पहले से ही बोलते आए हैं कि हमारे संविधान के मुताबिक सरकार हो, संसद हो, संविधान के मुताबिक चलनी चाहिए। आज वो संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है। जब संविधान संसद में रखना था तो उसमें ये बताया गया है, हम भारत के लोग इसको संसद में समर्पित करते हैं। और उसमें अपेक्षा क्या थी? गरीब और अमीर का फैसला ना बढ़े। आज क्या हो रहा है? पूरे देश में गरीब और अमीर का फैसला बढ़ रहा है। कई लोग खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए, और कई लोग जीने के लिए खा रहे हैं। कई लोग क्या क्या खाओ इसलिए जी रहे हैं, क्या क्या खाओ, और कई लोग क्या खाओ इसलिए जी रहे हैं। तो ये सब देख रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग देख रहे हैं, सरकार के लोग देख रहे हैं, फिर भी इस पर अमल नहीं हो रहा। तो ये संसद में हमारा जो संविधान है, संविधान का पालन नहीं हो रहा। मानवता और नेचर का शोषण, दोहन ना हो। आज देखिए, आप नदियां का निजीकरण हो रहा है। पूरी देश की नदियां पानी का निजीकरण कर रहे हैं, और ये नदियों का निजीकरण के कारण 12 महीने पानी से बहने वाली नदी आज सूख गई है। कहाँ लेकर जा रहे इस देश को? संविधान ने इस सब बातों को हम जो सोचा था और संविधान में ये बातें रखी है, उसका आज पालन नहीं हो रहा। इसके कारण हम लोग बैठकर ये थोड़ा सुझाव दिया। इसका ऐसा मानने का कोई कारण नहीं, किसी को संदेह निर्माण होगा देश में कई लोगों के बारे में, या अभी संसद को भंग करके नई संसद लानी है, क्या ये रिमोट कंट्रोल करने वाले हैं या ये अंदर जाने वाले हैं? हम कहीं अंदर नहीं जाएंगे, हम किस पर ना रिमोट कंट्रोल करेंगे। हमें इस देश को बदलना है। बाहर रहकर हम सिर्फ लोगों को जगाएंगे। लोक शिक्षा, लोक जागृति 30 तारीख तक हम अभी ये सरकार को भी बता रहे हैं, 30 जनवरी। और 30 जनवरी से आगे आने वाले 1 साल में पूरे देश में घूमेंगे। जनरल साहब, हम दोनों भी घूमेंगे। कोई किसी से अपेक्षा नहीं है, कोई किसी का लेना नहीं है, कोई लाभ उठाने की बात नहीं है। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस देश की सेवा है, सेवा करने के लिए हम बाहर पड़ेंगे और उसमें लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। एक बात तो हम महसूस कर रहे हैं कि हम दोनों भी फौज में थे, कई लड़ाई लड़ी हमें दुश्मन के साथ। अभी देश को बर्बाद करने वाले दुश्मन हमारे घर में छुपे हैं, उनके विरोध में भी लड़ाई करना जरूरी है। इसलिए हम सोचा कि मिलकर ये लड़ाई के लिए हम बाहर पड़ेंगे, लोगों को जगाएंगे, और लोग जब जग जाएंगे तो इसमें परिवर्तन आ जाएगा। आज कई लोगों को लगता है कि संसद भंग होनी चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे? उनके पास शक्ति नहीं है, ना वो कुछ कर सकते हैं। जब उनको एक ऐसी व्यासपीठ मिलेगा तो जनता इसमें उभर कर आगे आ जाएगी, और देश में एक माहौल बनने के बाद ये बात बन सकेंगे, ऐसे हमें लगता है। इसलिए हम लोग सोचा है कि अभी 30 जनवरी के बाद पूरे देश में हम जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या हो रहा है।
अरे जिस देश के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी की, उस देश की ये हालत है। ये सही मिली आजादी नहीं है। ये तो सत्ता और पैसे के मशगूल हो गए ये लोग।